ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਕ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਦਾ। ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੀਟੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ 1 ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਥਿਜ ਊਰਜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ mgh, ਜੋ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੇਨਲੀ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ, ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੀ h, ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਓਬਜੈਕਟ ਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਰਸਤੇ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੇ, ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੀਨਜ਼ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਥ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਡਜ਼ਨਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਪਾਥ, ਬਟ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਸ 10 kg ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈਟ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 6 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ mgh, ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ 10, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ 9.8 ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਨਟਿਲ ਔਰ ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 9.8। ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ। ਕਲੀਅਰ? ਐਂਡ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? 6 ਗਿਵਨ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨੀਚੇ 10 ਆ ਗਿਆ, 10 ਨਾਲ 10 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ 98 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 588 ਜੂਲ। ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੂਲ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9.8 ਹੀ ਲਓਗੇ, ਅਗਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ? 0.2 kg ਐਂਡ ਉਸ ਦੀ ਇਸਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? 3 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਫ mv ਸਕੇਅਰ। ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 0.2। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਕਲੀਅਰ? 2 ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 3 × 3, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 9/10, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 0.9 ਜੂਲ। ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਸੋਬਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ।
कल मैं वैसे रिलेशन करवाया सी मोमेंटम की हुंदा मोमेंटम नू रो दे नाल इस तरीके नाल पी दी वर्गी शेप हुंदी है। मोमेंटम हुंदा मास इनटू वेलोसिटी किसी भी ऑब्जैक्ट दी, ठीक है जी। तो मास की यूनिट की हुंदी है किलोग्राम, वेलोसिटी दी मीटर पर सैकेंड, तो मोमेंटम की यूनिट की होगी किलोग्राम मीटर पर सैकेंड, ठीक है जी। रिलेशन कर लैंने कनाइटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का। ये चैप्टर छोटा जहा सी इसलिए मैं डायरैक्ट करवा रही हूँ। कनाइटिक एनर्जी अपन पता है, वैसे मैं आई थिंक सो कल करवाती हाफ एम वी स्केयर। तो मोमेंटम इस तो ईजली कल करवाया सी एम नाल मल्टीप्लाई एम नाल डिवाइड, तो एक ही बन गया इन्हां दा आपस दे विच रिलेशन हो गया। ये क्वेश्चन आया होया आई थिंक आया होया है कि कनाइटिक एनर्जी ते मोमेंटम दे विच रिलेशन दसो तो कितना हुंदा पी स्केयर बाय 2m, रो स्केयर भी लिख सकते हो। क्लीयर। एक नूमैरिकल ये भी आया होया है, मैं तो नाल सारे करवा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है। कहते 2 बॉडीज़ हैं ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैव इक्वल कनाइटिक एनर्जी। कनाइटिक एनर्जी की है इक्वल है, इक्वल कनाइटिक एनर्जी की है P1 एंड P2। एक ही ने इन्हों के मोमेंटम्स ने, मतलब मोमेंटम्स अलग अलग दिते हुए हैं। रेशो निकालनी आपने, सॉरी रेशो निकालनी आपने मोमेंटम की, तो किस दे इक्वल होगी। ऑप्शनस दित्तियां हुई सी, आप सिंपली सॉल्व करते हैं। हुण कनाइटिक एनर्जी आपां नूं इक्वल है, ये पॉइंट ध्यान दे विच रखने वाले हैगा, ठीक है। तो कनाइटिक एनर्जी इक्वल है, तो इन्हां दा रिलेशन भी आपां नूं पता है। रिलेशन की सी, कनाइटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू पी स्केयर बाय 2m, ठीक है। तो दो इत्थों अगर मोमेंटम निकालिए आपां की हो गया पी स्केयर इज़ इक्वल टू कनाइटिक एनर्जी इंटू 2m, इधर मल्टीप्लाई च चला गया। हुण अपने कोल मोमेंटम अलग अलग है, P1 लै लो, एक P2 लै लो, कनाइटिक एनर्जी सेम है, ठीक है। तो 2 मास की ने m1 ते m2, तो इत्थे m1 कर दो, इत्थे मास की हो जाऊगा m2। इन्हां दी की निकालनी है रेशो, इन्हां नूं डिवाइड कर दो, रेशो निकल जूगी। कनाइटिक एनर्जी ना कनाइटिक एनर्जी कैंसल, 2 नाल 2 कैंसल, की आ गया m1 बाय m2। हुण जदों इधर स्केयर है तो आपां नूं स्केयर का नहीं पूछे, स्केयर का भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ने, स्केयर का नहीं पूछा तो स्केयर उधर जाके की बन जूगा अंडर रूट, की बन जूगा अंडर रूट m1 बाय अंडर रूट m2। एक ही आ जूगा, आंसर आ जूगा। ये क्वेश्चन आया होया एग्जाम दे विच, ठीक है। क्लीयर। आई होप तुहानूं ये टॉपिक क्लीयर हो चुके हैं, क्योंकि इस दे उपर क्वेश्चन इस तरीके नाल की है बने हुए ने। नैक्सट आपां गल करांगे मास एनर्जी रिलेशन। या इक्विवेलेंस किस दे इक्वल हुंदी है, ठीक है। आइनस्टाइन ने दस्सिया सी कि मास ते एनर्जी दो डिफरेंट फॉर्म्स ने एनर्जी दियां, मतलब सेम इंटैटी दी अलग अलग ने, ये डिफरेंट फॉर्म्स ने। E इज़ इक्वल टू एम सी स्केयर सीगा इज़ द रिलेशन या इक्विवेलेंस। E अपने कोल एनर्जी है, M अपने कोल मास है, पता है आपां नूं। C की है, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस ते न्यूमेरिकल्स आंदे हैं, ध्यान ना करियो। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस किस दे इक्वल हुंदी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सैकेंड। ये अपने कोल की हुंदी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपां इस दे थ्रू की है न्यूमेरिकल सॉल्व कर लैंदे हां। तो मास नूं एनर्जी अगर आपां ऑबटेन करनी है तो मास नूं की करांगे आपां कंप्लीटली कन्वर्ट कर दांगे एनर्जी दे विच, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की गल करिए, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखो, जदों एनर्जी नूं की है आपां एक फॉर्म तो
ਦੂਸਰੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਰੇਟਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਸਟ ਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਕੈਨ ਨਾਈਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੋਰ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ। ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਵੇ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਵੇ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹੂਗੀ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਐਟ ਆਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ। ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ, ਬਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਫॉल ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਓਨੀ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। एग्जाम्पल दे रहा कंजरवेशन दी, सिंपल पेंडुलम अपना सिंपल पेंडुलम कितना हुंदा है, इस तरीके नाल, मतलब स्विंग करन दे लई एक थ्रैड दे नाल बॉब हुंदा, इसनूं बॉब बोलदे आ, बन्निया होया हुंदा जो की है एक ये रिजिड सपोर्ट है, एक सख्त सपोर्ट दे नाल जो फ्रीली मूव करदा है। तो जो स्विंगिंग हुंदी है सिंपल पेंडुलम दी, एक है कंजरवेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व करना, ठीक है, एनर्जी कंजर्व करना। तो देखो ए पॉइंट ते है, जदों ए पॉइंट टू बी पॉइंट गई बॉब, तो इत्थे पोटेंशियल एनर्जी की हो गया, मैक्सीमम, बट काइनेटिक एनर्जी की होगी, ज़ीरो। बी टू ए आई, ठीक है, फिर की है ए टू की गई सी, सी गई, इत्थे भी की है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सीमम है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, क्योंकि एक हाइट ते आ गई, ठीक है जी। जिहड़ा ए पॉइंट है जितों शुरू हुई है, इत्थे काइनेटिक एनर्जी मैक्सीमम होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी की होगी ज़ीरो, क्योंकि कोई हाइट नहीं होंदी, ठीक है। क्लियर? ठीक है, मतलब ये हाईएस्ट होगी, हाइट ते आ गई, हाईएस्ट ऑफ स्विंग, हाईएस्ट पॉइंट है, इत्थे काइनेटिक एनर्जी मैक्सीमम, इत्थे भी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? समझ आया? नैक्सट आप टॉपिक करांगे पावर। पावर की हुंदा, पावर is measured as the rate of doing work, rate of doing work, किन्ना काम किया गया उसनों की बोलते हैं पावर। ए की हुंदी अपने कोल एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी SI यूनिट निकालते हैं, वैसे वॉट हुंदी है,
ठीक है। SI यूनिट की होंदी है वॉट। पावर का फॉर्मूला वर्क डन बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लिता गया स्मॉल टी नाल लिखिया जाता है, ठीक है। वर्क डन नूं आपां किस च मापदे हां, जूल च। टाइम नूं सैकेंड च, तां इहदी जूल पर सैकेंड भी हुंदी है, किते दिता होवे पेपर च तुसीं कैंसल करके आ जाओ। और वॉट SI यूनिट हुंदी है, पावर दी यूनिट, ठीक है। होर पावर किसी ऑब्जैक्ट की होंदी है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स जिहड़ी उस बॉडी ते लगाई गई है एंड वेलोसिटी जो उस बॉडी द्वारा प्रोड्यूस की गई है, ये भी एक पावर का फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके नाल बन सकते हैं। फोर्स जो अप्लाई की गई है उस बॉडी ते, F वड्डी भी लिख लो, एंड वेलोसिटी, वेट मैं F वड्डी करता फोर्स दे, ठीक है। फोर्स एंड वेलोसिटी जो अप्लाई प्रोड्यूस की गई है उस बॉडी के द्वारा। यूनिट्स ऑफ पावर मैं कुछ दसदा, जिवें 1 किलोवाट किस दे इक्वल होंदा 1000 वॉट दे, एंड 1 मेगावाट 10 रेज़ टू पावर 6 वॉट दे इक्वल होंदा, एंड 1 हॉर्स पावर 746 वॉट दे इक्वल होंदा है। क्लीयर, ये तीनों इंपॉर्टेंट ने, किसी नूं किसी च भी कन्वर्ट करना पै सकता है। नाल ही इस दे अगर आपां ने इलैक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इलैक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है मतलब, तो वह की होगा कंज्यूम बाय मतलब किहड़े इलैक्ट्रिकल एप्लीकेंट्स दे नाल, तो किस तरीके नाल आपां निकाल सकते हैं इलैक्ट्रिकल एनर्जी नूं, NPT। एन का मतलब कि किन्ने नंबर ऑफ अप्लाइंसिस ने, ठीक है, विथ सेम पावर एंड वर्किंग आवर, विथ सेम वर्किंग आवर्स। कमर्शियल यूनिट एनर्जी की होंदी है, ठीक है, वॉट है ये, किलो वाट आवर, ठीक है। जिमें अपने घरों के बिल आते इलैक्ट्रिक बिल आते तो उत्थे लिखे होंगे 45 यूनिट्स 100 यूनिट्स, तो जी वो यूनिट्स ने वो किलो वाट आर के अकॉर्डिंग होंगी है। 1 किलो वाट आर किस दे इक्वल होंगे 1 यूनिट के। क्लीयर, ठीक है जी। तो इस वे दे नाल तुसीं निकाल सकते हो। तो अगर गल की जाए बेसिस ते न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, मतलब आह जो NPT मैं करवाया है इस दे बेस ते गल कर रही हूँ, ठीक है। जिमें तुहानूं क्वेश्चन बन सकता है, यही देख लैंदे आ, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर consumed in 10 hours by 4 devices of power 500 watt। तो क्वेश्चन किमें सॉल्व करोगे, एनर्जी अपन पता कि इक्वल है NPT, हुणे करवाई है मैं। N किन्नी अप्लाइंसिस है 4, पावर किन्नी दिती हुई है 500, टाइम कितना 10 आवर्स, ठीक है। पुट कर दो 5 4 ज़ा 20 नाल 3 0 कितना आ गया 20,000 वॉट आर। हुण अगर इनू किलो वाट आर दे विच लैके आना, इन किलो वाट आर क्या होया, तो इसनों 1000 नाल की कर देंगे डिवाइड, कैंसल, कितना आ गया 20 किलो वाट आर के कैपिटल, ठीक है जी। इस वे दे नाल तुहानूं की आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। क्लीयर, हुण आपां क्वेश्चन सॉल्व करांगे, कुछ मैं तुहाडे लई तैयार किए हुए हैं। देखो कहते ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, the displacement is 8 meter in the direction of force, what is the work done।
वर्क डन कितना होगा। आपां नूं पता है वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट कितना सिंपल है, फोर्स कितनी है 7 न्यूटन, डिसप्लेसमेंट कितनी है 8, 7 8 ज़ा 56 जूल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। अ लैंप कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलैक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स। किन्ने सेकेंड्स दे विच 10 सेकेंड्स दे विच पावर कैलकुलेट करनी है। पावर का फॉर्मूला वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन कितना है 1000 जूल, यूनिट तो देख लो जो वर्क डन मैंशन नहीं है 1000, टाइम 10 सेकेंड कितना आ गया 100 वॉट पावर की यूनिट। कई बार ना यूनिट चेंज होंगी आंसर सेम होंगे, तो यूनिट ध्यान रखियो कि इसकी केड़ी यूनिट है, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रखती है यूनिट। ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार, एक कार नू रोकनी है, रोकना है मतलब ऑफ 1500 kg, जिसका वेट कितना है या मास कितना है 1500 kg, मूव कर रही है विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर ना मूव कर रही है। यदा मतलब तुहानू मास दिता है 1500 किलोग्राम, वेलोसिटी दिती हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। देखो हुण तुहानू पता है आपां किस च मापदे मीटर पर सैकेंड च, पर ये किलोमीटर पर आवर है, तो यदि यूनिट कन्वर्ट करांगे लिख दोगे 60 × 5 × 18, चेंज करोगे कितना आ गया, कैंसल कर लियो 50/3 मीटर पर सैकेंड। पुट कर दो, हूँ तो कुछ रहा ही नहीं। किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², मास कितना 1500, वेलोसिटी कितनी है v का स्केयर होंगे तो इसका स्केयर आऊगा, खोल के लिख लो चाहे 3/3, 5 3 ज़ा 15, 2 नू 50 तो कैंसल किया 25। ठीक है, अगे भी कैंसल हो जाऊगा। 500 नू 25 ना मल्टीप्लाई की 12500 इंटू 50/3, अगे इसकी कर दें 5 के नाल तो कितना आ गया 625 नाल 3 zeros डिवाइडेड बाय 3, तो तुहाडे कोल आ जाऊगा 233 पॉइंट्स च जाऊगा, इन्ना का आ जाऊगा अप्रोक्सीमेटली 3 डिजिट ले लो। ठीक है जी। जूल ये तुहाडी की आ गई एनर्जी, मतलब 2,08,333। चलो ये तुहाडा की हो गया आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लीयर हो गया। यूनिट कन्वर्ट करने के लिए मैं क्वेश्चन लिया सी, ये तुहानू आना चाहिए। नैक्सट लास्ट क्वेश्चन करते हैं अज का, फोर्थ क्वेश्चन। कहते ए बॉडी ऑफ मास 100 kg, ध्यान ना पढ़ियो, मास की है उसका 100 kg एंड अप बाय 10 मीटर इज़ लिफ्टड अप बाय 10 मीटर, उसनों चक्या किस दे नाल जा रहा है 10 मीटर्स दे नाल, क्या उपर चक्या जा रहा है। यदा मतलब हाइट की गल होगी है ना, जदों हाइट की गल होगी तो की होगी पोटेंशियल एनर्जी की गल। फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम दिता गया, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। देखो पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन इत्थे इक्वल नहीं होंगे हैं, मतलब वो काम ही दसदा ना, वो तो टाइप्स ने काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, वो भी आपां किहदी गल करदे हां, एक च हाइट च एक च स्पीड दी वेलोसिटी दी, तो इत्थे हुंदी तो दोनों सेम चीज़ ने, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना, एक सेम आंसर आऊगा इन्ना क्वेश्चन का। ठीक है, कितों कन्फ्यूज़ होकर अलग अलग लभन लग जाओ, नो सेम आंसर आऊगा। तुसीं ऑप्शनस चैक करोगे ना, कई बार ऑप्शनस च एक ऑप्शन ही सेम वाली होगी, बाकी सारी अलग अलग वाली होगी, तुसीं उन्होंने छोड़ दोगे भी सेम थोड़ी होगा, उन्होंने नहीं छोड़ना, वो ही आंसर होएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मास अपने को 100 है एंड हाइट कितनी सी 10 मीटर, तो वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी है mgh, या वर्क डन लिख लो चाहे पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, एक ही आंसर है। मास कितना है 100, ग्रैविटी तुसी 9.8 नाल भी कर सकते हो, अगर तुहानू गिवन है 10 तो तुसी 10 भी लैके चल सकते हो, 10 ले लेने, सिंपल सॉल्व हो जाओ। हाइट 10 पर तुसी 9.8 नाल ही पहला सॉल्व करोगे। ठीक है, कितना आंसर आ गया 10 किलो जूल।
अगर किलो जूल च निकालना आपने, ठीक है। तो 10 किलो जूल आ गया, 1000 हो गया ना, 1000 का किलो बन जाता है, 10,000 है वैसे आंसर। जे 9.8 ना निकाल दो 9800 आ गया, ठीक है जी, क्लीयर। यूनिट ध्यान च रखियो, जिमें इतने किलो जूल की आप, तो इतने भी पर ये चेंज करना पै जाऊगा, तो तुम यही वाला ही कर लियो, ठीक है, क्लीयर। आई होप तो समझ आ चुकी है। टॉपिक वर्क एंड एनर्जी के MCQs कल करांगी। ये मैं 4 क्वेश्चन इसलिए करवाते थे ताकि तो कोई डाउट ना हो जाए, है ना, भी मतलब नाल नाल समझ आना ठीक रहता है, इसलिए मैं तो करवाते थे क्वेश्चनस। बाकी दी कल करांगे। आई होप तो क्वेश्चनस भी अच्छे लगे होन, वीडियो भी। मैं ज़रूर कमेंट सैक्शन दे विच दसियो कि तो वीडियो किद्दां लगी, क्वेश्चनस किद्दां लगे, कमेंट सैक्शन च दसियो। लाइक तो कर ही दिया करो प्लीज़, लाइक शेयर तुसी बिल्कुल नहीं करते, शेयर भी कराया करो। एक्चुअली जो कमेंट करते हो ना, फिर मोटिवेशन मिलती है कि हाँ जी बच्चों अच्छा लग्या कुछ, बट अगर तुसी कमेंट ही नहीं करते फिर मैंने पता ही नहीं चलता तुहानू वीडियो किद्दां दी लगी, है ना ही तुसी मैंने क्वेश्चनस, मैं एक दो वीडियोज़ दे विच पाया सी भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दसो, एक स्टूडेंट दे ही आंसर आए हैं, तो प्लीज़ मैंने दसो। एंड जिन्होंने हजे भी सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लियो, बैल आइकन नू प्रैस कर लियो, टैलीग्राम ग्रुप नू ज्वाइन कर लियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मैं लिंक प्रोवाइड किया होया। आई होप तुहानू क्लासेस अच्छियां लग रही ने। थैंक यू सो मच, थैंक यू।